Okay, Assalamu alaikum. So let's get started with lab 8. Now in this lab, again, we have been talking about different data visualization techniques in MATLAB, and we particularly talked about the plot command and then the subplot command. Now again, since this is a beginner level course, that's why we are spending a lot of time on these rather trivial things. They are not that complicated, and if you go through the documentation of these functions, they are fairly easy to understand and use. But still, since this is an introductory course, so that's why we are doing these things. Here, we will learn to use about another plot or data visualization technique, and it is called a scatter plot. And again, we'll use the scatter plot in 2 dimensions. So you can have a scatter plot in 3D as well, just like you can have other plots in 3D, but we will use scatter plots in 2 dimensions. And we will be using scatter plots, like we'll be demonstrating how to use the scatter plot, and it will just be a call to this function scatter. And I'll tell you, it is more or less the same as the simple plot, but the plot function that we have used so far, it is basically a line plot. Line plot means that if you are going to print a plot, say 100 points, just like we did in the previous examples, how do you specify those 100 points? So you specify the x coordinate and the y coordinate for each of those points. So you print 100 points on the figure or on the plot, but you see a continuous plot, okay? And you see that continuous plot because all those points are joined together using lines, using straight lines. Okay, so you don't see just those 100 points. You see those 100 points joined together by small line segments, and therefore you have the look and feel of a continuous plot. It is not just a discrete plot of 100 points. The scatter plot, it gives you that discrete look. It gives you that discrete look. So each point is plotted separately and it is visible separately. There is no line or curve that joins these points. It is just you can see all those points individually. Now scatter plot in itself is very easy. There's nothing difficult about it. It's just the scatter function. You can call it, you can give it the input arguments, and it will produce a scatter plot. But in this, while generating this scatter plot, we want to learn about something else, something more interesting. So remember, we have been using these random numbers, and random numbers, they generate the rand function. We have been using the rand function to generate random numbers. Okay, so say for example, you know about this function rand, and you specify the size of the vector that you want to generate using this rand function. And when you call this function, so you get a random value, and this random value is between 0 and 1. Okay, so it can be any value between 0 and 1. So we have talked about this. We have talked about the rand function. It basically gets a number from the uniform random number distribution. We have talked about the rand n function, and this function takes a value randomly from the normal distribution. Okay, so we have talked about these functions. We'll use these random numbers to do something interesting, and that is to estimate the value of pi. Now you know what pi is, okay? So up until now, I guess you have been using the value 22 by 7 to approximate pi. Okay, so 22 by 7 is not the exact value of pi. Pi is an irrational number, and 22 by 7 is a rational number. So this is not the exact value of pi. It is basically the approximate value of pi, one of the approximate values of pi that we have been using. So you know what pi is. You have the constant pi available in MATLAB and Octave. If you see, there's a difference between these two values, 22 by 7 and the pi that you are using. They are different. Okay, so difference starts in the third decimal place, so they are different. So the point that I want to make is that pi is an irrational value, and it is basically the ratio of the circumference of a circle to the diameter of the circle.
So the circumference of the circle, ratio of the circumference of the circle to the diameter of the circle. This ratio is called pi. Now we can estimate or approximate the value of pi using simple random numbers. Okay, and how would that happen? So for that we will play a small game, and we will simulate that game on a computer. Now the technique the technique that I'm going to demonstrate in this particular lab, it is a very simple technique, but it belongs to a group of techniques or methods called Monte Carlo techniques or Monte Carlo methods. And in Monte Carlo techniques and Monte Carlo methods, what you do is you basically play games, or you simulate a phenomena over a large number of times, and then you try to find out the most probable outcome of that phenomena. Okay, so here we will use a small Monte Carlo game to estimate the value of pi. Now how would we do that? So first of all, let us consider a unit circle. So I hope you know what a unit circle is. A unit circle is a circle whose radius is unit radius, which has a unit radius. Now unit radius means that the value of the radius is 1. The unit can be anything. It can be 1 centimeter, it can be 1 meter, it can be 1 foot, it can be anything, but the unit, the numerical value of the radius is 1. So if you have a unit circle, the area of the unit circle is, area of any circle is pi r square. If r is equal to 1, so r square is equal to 1, and hence pi r square is equal to pi. So the area of a unit circle is pi. Pi is the area of a unit circle. Now if we can estimate the area of a unit circle using some technique, that means we will be able to estimate the value of pi. So this is how we are going to estimate the value of pi. We are going to estimate the value of pi by estimating the value of a unit circle. And how are we going to do that? So in order to do that, just look at this figure that you see here. This is also this figure is also helpful. So here I basically show you a circle, and I have divided that circle into 4 equal pies, 4 equal pieces. So you can consider it as a pie, and we have divided it into 4 equal slices. Now this slice falls in the first quadrant, this in the second quadrant, third quadrant, and this one is in the fourth quadrant. And I have mentioned the coordinates of x and y. So x and y both are positive here. Here x is negative, y is positive. Here both an x and y are negative. Here x is positive, y is negative. Okay, so this is basically the circle. Now we will not consider the full circle. We can consider the full circle, but here we will not consider the full circle. We just take this one quadrant, this one pi. Okay, so imagine or assume that I have taken this pi and brought it here. Now this is this pi that you see here. Okay, now around this pi I draw a unit square. So this square, its length or its side length is equal to 1. Okay, so imagine this unit square, and inside this unit square we have this curve which basically outlines this quadrant or this quarter of a circle. Okay, now what type of game are we going to play? So imagine that you have this thing drawn on a board. ठीक है, आप imagine करें कि ये आपने एक board पे draw कर दिया है, and you throw darts at this board. Now I hope you know what darts are. ठीक है, so let me show you what a dart is. ठीक है, so I'm sure many of you have played this game. Dart is a programming language as well, but this is what a dart is. ठीक है, ये है dart, इस चीज़ को हम dart कहते हैं, और आप ये throw करते हैं, and if you hit something, so you get, depending upon the game that you are playing, you get something to do, या आपको कोई lucky number निकल आता है, उसके हिसाब से आपको कोई prize मिलता है, इस किस्म के काम आप करते हैं. ठीक है, अच्छा, now imagine that you have a board, and the dimensions of that board are 1 by 1. एक
1 by 1 meter or 1 by 1 centimeter. 1 by 1 centimeter would be a very small board. 1 by 1 foot or 1 by 1 meter, so you can consider a board like this, ठीक है. और उस पे आपने ये कर्व ड्रा की हुई है, एंड दिस कर्व हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 meter, 1 centimeter or 1 foot depending upon the dimensions that you are using or the units that you are using, ठीक है. अब आप इमेजिन करें कि आप इस पे डार्ट्स फेंकते जाते हैं, ठीक है. You have, I give you 1000 darts and you start throwing those darts on this board, ठीक है. And you start throwing those darts randomly, like without taking an aim. आप निशाना नहीं लगा रहे, आप randomly वो darts throw कर रहे हैं. लेकिन हम इस assumption में ये भी डाल देते हैं कि वो dart जो है जो आप throw करते हैं वो बोर्ड से लग के गिरता नहीं है या किसी दूसरे dart को नहीं हिट करता, ठीक है. वो कोई खाली जगह हिट करता है, ठीक है. चूंकि आप दिस इज अ प्योरली परफेक्टली रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब भी आप किसी डार्ट को फेंकते हैं तो वो किसी न किसी एम्प्टी लोकेशन पे जिस पे ऑलरेडी कोई डार्ट नहीं लगा वहां पे वो गिरता है, ठीक है. अच्छा, तो आपके पास 1000 डार्ट थे जो कि आपने फॉर एग्जांपल थ्रो किए इस बोर्ड पे. अब उनमें उन 1000 डार्ट्स में कुछ डार्ट्स जो हैं वो इस सर्कल के अंदर गिरेंगे. ये जो आपके पास सर्कल तो नहीं है, दिस इज बेसिकली सेक्टर ऑफ अ सर्कल. इस सेक्टर के अंदर गिरेंगे, कुछ इस लाइन के ऊपर गिरेंगे, कुछ इस लाइन के अंदर गिरेंगे, कुछ इस लाइन से बाहर गिरेंगे, ठीक है. नाउ जो इस लाइन के अंदर गिरेंगे या इसके ऊपर गिरेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है. तो वो डिपेंड करती है अपॉन द एरिया ऑफ दिस सर्कल. ये एरिया जितना ज्यादा होगा तो उनके यहाँ पे गिरने के या लगने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे. जितना ये एरिया कम होगा उतने उनके चांसेस कम होंगे, ठीक है. तो जितने डार्ट्स इस सेक्टर में गिरते हैं अगर हम उनको काउंट करें कि वो टोटल का कितना फ्रैक्शन है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सेक्टर के एरिया का, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर 1000 डार्ट्स में से 700 यहाँ गिरते हैं, 300 इस इलाके में गिरते हैं, तो हम अंदाजन कह सकते हैं कि जी इस सेक्टर का जो एरिया है वो 0.7 है. 0.3 ये वाला एरिया है जहाँ पे डार्ट्स बाहर गिरे इस रीजन से, ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये गेम खेल के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो हमारे पास सेक्टर है इसका एरिया क्या है, ठीक है. इस सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सेक्टर का एरिया हम रैंडमली डार्ट्स थ्रो करके कैलकुलेट करेंगे. तो हम 1000 डार्ट्स हमने लिए और वो 1000 डार्ट्स हम रैंडमली थ्रो किए जा रहे हैं इस बोर्ड पे, ठीक है. रैंडमली थ्रो करने का मकसद ये है कि वी आर नॉट टेकिंग एनी एम, वी आर जस्ट थ्रोइंग दोज डार्ट्स एंड दोज डार्ट्स कैन लैंड एट एनी प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर बोर्ड. किसी भी जगह पे वो लैंड कर सकते हैं, ठीक है. अगर वो इस सेक्टर के अंदर लैंड करते हैं तो वी से कि दिस इज अ हिट क्योंकि ये हमारा टारगेट एरिया है. अगर वो इसके बाहर लैंड करते हैं तो वी से कि दिस इज अ मिस क्योंकि दिस इज नॉट अवर टारगेट एरिया. ये हमारा टारगेट एरिया क्यों है? क्योंकि हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं. अच्छा, डार्ट्स का जो फ्रैक्शन इस एरिया में गिरता है, ठीक है, वो हमें एक गेस देगा या एक एस्टिमेट देगा अबाउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है. अगर उस एरिया को हम 4 से ज़रब दे दें तो हमें वो सर्कल का, पूरे सर्कल के एरिया का एक एस्टिमेट देगा, ठीक है. 4 से क्यों ज़रब दे रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक क्वार्टर को कंसिडर कर रहे हैं. अगर ये चारों क्वार्टर पे हम ये एक्सपेरिमेंट करते तो 4 टाइम्स इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती, ठीक है. वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, so let me repeat it again. This is important that you understand it. हम यहाँ पे पाई की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हैं using purely random numbers. We will not use any formula. We will not use any relationship, anything like that. हम simple pure random formula हम use करेंगे in order to determine कि आया ये particular जो dart है ये इस सेक्टर के अंदर है या नहीं. उसको एसरटेन करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला ये वाला है. वो सर्कल का जो अगर आपको याद हो एफएससी में आपने कॉनिक सेक्शंस का सेकेंड ईयर में एक चैप्टर सेक्शन पढ़ा होगा. उसमें आपने मुख्तलिफ जो पैराबोलाज हैं, हाइपरबोलाज हैं, सर्कल्स हैं, उनके इक्वेशंस पढ़े होंगे.
सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, यानी ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सर्कल. अब सर्कल जो है ना, ये सिर्फ ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री है, दिस इज द सर्कल. तमाम पॉइंट्स जो इस सर्कुलर बाउंड्री पे होते हैं फॉर अ यूनिट सर्कल, सो वो इस रिलेशनशिप को ओबे करते हैं. व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? कि इनमें से किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का अगर आप स्क्वायर लें और उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें और दोनों को आप ऐड करें, so that will give you the square of the radius. So x square plus y square is equal to r square. ठीक है. और यहाँ पे हम assume कर रहे हैं कि सर्कल का जो सेंटर है it is at the origin. अगर वो ना हो तो then you will add some offset x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. So a b would be center of the circle, c would be radius of the circle. ठीक है. So we know about this relationship and you can use this relationship to find out whether एक point जो है वो सर्कल के ऊपर है, सर्कुलर बाउंड्री के अंदर है या सर्कल से बाहर है. So we can use this relationship for all the points that are on the circular boundary. ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री है या इसके अंदर अगर हैं, तो उन तमाम पॉइंट्स के लिए x square plus y square would be less than or equal to 1. वो पॉइंट्स जो कि इस सर्कुलर बाउंड्री से बाहर हैं, इस रीजन में हैं, for those points x square plus y square would be greater than 1. ठीक है. So we can use this relationship and we will use this relationship to find out कि कौन सा वाला डार्ट सर्कुलर बाउंड्री से बाहर गिरा है और कौन सा वाला डार्ट सर्कुलर बाउंड्री के अंदर गिरा है. ये क्यों हम करना चाहेंगे? वो इसलिए हम करना चाहेंगे कि हम नंबर ऑफ डार्ट्स को काउंट करना चाहते हैं जो कि इस रीजन के अंदर गिरे हैं. उन डार्ट्स को काउंट करना चाहते हैं जो कि इस रीजन के अंदर गिरे हैं. और जब हमें ये पता चल जाए कि कितने गिरे हैं और कितने हमने टोटल फेंके थे, तो इस रेशो जितने जितने इस सेक्टर में गिरे हैं और जितने हमने टोटल फेंके थे, ये जो रेशो है, दिस विल बी आवर एस्टिमेट फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक है. फिर इसको अगर हम 4 से ज़रब दें तो हमें ये यूनिट सर्कल के एरिया का एस्टिमेट दे देगा और यूनिट सर्कल का एरिया है पाई के बराबर, तो ये हमें फिर पाई का एस्टिमेट दे देगा. ठीक है. So this is what we will do. This is the course of action for this particular lab. अब आए इसको करते हैं. अच्छा, ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, but I will repeat it. मैं इसको दोबारा से, ताकि आपको समझ आए वो पूरा प्रोसेस जो है. So let us create another script file and let me rename it estimate pi 2. ठीक है. अच्छा, so यहाँ हम इस स्क्रिप्ट के जरिए पाई की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे. और किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे? इस तरीके से एस्टिमेट करेंगे. ठीक है. सो विल कंसीडर अ यूनिट सर्कल और उस यूनिट सर्कल का एक क्वार्टर हम ले लेंगे और उस पे हम इमेजिन करें कि हम डार्ट्स थ्रो कर रहे हैं. अब ये डार्ट्स थ्रो करने को सिमुलेट कैसे करेंगे? डार्ट्स थ्रो करने को हम सिमुलेट सिंपल बाय जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. हम एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे, यानी ये जो डार्ट हम फेंकेंगे वो जब जहाँ जिस पॉइंट को हिट करेगा, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोई x कोऑर्डिनेट होगा और कोई y कोऑर्डिनेट होगा. अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रैंडम है, मतलब हम कोई एम नहीं ले रहे, हम सिर्फ फेंक रहे हैं, तो वो कहीं भी गिर सकता है, कहीं पे भी लग सकता है. तो दिस कैन बी एनी रैंडम वैल्यू और ये रैंडम वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द रैंड फंक्शन. तो इसके ऐसा करने से हम यानी ये सिमुलेट करेंगे कि जी ये डार्ट हमने इस बोर्ड पे फेंका और ये इस पॉइंट पे लगा. So we'll simulate this process just by generating random values for x and y coordinates जहाँ पे वो point, जहाँ पे वो dart गिरता है. ठीक है. So let us do that. ठीक है. अच्छा, so पहले हमने क्या करना है? पहले हमने x coordinate जो है उसको हमने randomly उसको generate करना है. This is the x coordinate of the dart जो कि हम throw कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमने एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है. ठीक है. अच्छा, तो हम एक स्केलर वैल्यू जनरेट कर रहे हैं. फिर हम y के लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. y के लिए हमने एक रैंडम वैल्यू जनरेट की. अच्छा, x के लिए भी रैंडम वैल्यू जनरेट की, y के लिए. सो जब ये रैंडम वैल्यूज हम जनरेट करते हैं, तो इन रैंडम वैल्यूज के जनरेट करने से हम क्या बेसिकली सिमुलेट कर रहे हैं कि हमने डार्ट बोर्ड पे फेंका और वो डार्ट उस बोर्ड पे कहीं किसी पॉइंट पे लगा और वहां वो इट गॉट स्टक देयर. ठीक है. सो नाउ वी हैव द x and y coordinates of the dart जो कि हमने थ्रो किया. सो व्हेन वी जनरेट
one random value for x and one random value for y. So just by generating these values we are simulating one dart throw. ठीक है, so यहाँ पे let me add a comment कि simulate a dart throw. So we are simulating the throw of a dart, the throw of just one dart here, just by generating these random values. अच्छा, now we want to know whether this is a hit or a miss. ठीक है, we want to know whether this is a hit or a miss. Hit या miss से क्या मुराद है? So we want to find out whether this dart landed in this sector or whether it landed outside this sector. So if it landed inside the sector, it is a hit. If it landed outside, it is a miss. ठीक है, so how are we going to find out? So उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं और वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल कि सर्कल की बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट हो तो इट ओबेज दिस प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. ठीक है, सो वी नो दिस फ्रॉम कैलकुलस. Now, in order to find out whether a dart has landed on the circle or inside the circle, we will use this relationship. तो वो हम कैसे करेंगे? So हम ये काम करेंगे, if x square, ठीक है, plus y square, if x square plus y square is less than or equal to 1, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है if x square and y square is less than or equal to 1, that means it is a hit. The dart has landed inside the circle. ठीक है, the dart has landed inside the circle. If that is not the case, ठीक है, else then it is a miss. ठीक है, it is a miss. So the dart has landed outside the circle. ठीक है, अच्छा जी. So इस केस में हम क्या करेंगे? Now let us end this if block. So this is end. Sorry. अच्छा. So what are we going to do when there is a hit, and what are we going to do when there is a miss? ठीक है. अच्छा, तो हमने hits भी काउंट करने और हमने misses भी काउंट करनी है. ठीक है. So hits. So we need to store hits in a variable. So let us declare a variable hits और उसमें उसको initialize कर दें with 0, and then we need to store के misses. अगर आप number of misses को store ना भी करें तो it doesn't matter, क्योंकि total जो है जितने darts हम throw कर रहे हैं तो that is important. So even if you don't store it, doesn't matter. ठीक है. अच्छा, the total throws, total number of throws, that is important कि हमने कितने throws किए. So initially let us suppose कि we'll do 1000 throws. ठीक है, हम 1000 मर्तबा darts को throw करेंगे. अच्छा, so when there is a hit, so what do we need to do? We need to record a hit. एक hit हो गया, so we need to increment hit. So अब hit को हम यहाँ पे increment कर रहे हैं. The second thing that we need to do is we need to plot it. अब मैं इसको plot भी करना चाहता हूँ. ठीक है. So whenever there is a hit or a miss, दोनों cases में मैं उसको plot करना चाहता हूँ और मैं उसको different plot करना चाहता हूँ. Say for example, if there is a hit, I want to plot it in green color. If there is a miss, I want to plot it in red color. ठीक है. So ये हम करना चाहते हैं और plotting हम करेंगे using the scatter plot because I want to see the individual point. हम उनको lines के जरिए से जोड़ना नहीं चाहते. ठीक है. अच्छा, so let us do the scatter plot. Scatter plot कैसे करेंगे? You will call the scatter function. So if you write scatter, you see you get यहाँ पे आपको scatter 3 भी नजर आता है. So scatter 3 is for 3D scatter plot. Scatter is for 2D scatter plot. Scatter plot जब आप करते हैं इसको आप कम से कम 2 आर्गुमेंट्स तो देंगे ना 2D में, x और y कोऑर्डिनेट्स. So x कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का जिसको आप प्लॉट करना चाहते हैं और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो है x और y. एंड देन आई वांट टू स्पेसिफाई कि कलर क्या होगा. सो कलर हम ग्रीन स्पेसिफाई कर देते हैं G. कलर स्पेसिफाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. सो उनमें से एक तरीका ये है कि आप एज अ स्ट्रिंग उसको स्पेसिफाई करें और यहाँ पे या फुल ग्रीन लिख सकते हैं या सिंपल G लिख सकते हैं, या आप RGB वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगेन आई वुड रिकमेंड ये सारी चीज़ें वी कैन नॉट लाइक गो थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन.
in these labs. So you can look up the scatter function and its documentation, and you'll come to know, okay, what are the possibilities with this scatter function. Okay, so we want to print a hit in green, ठीक है, and if there is a miss, we don't want to do any counting, ठीक है, hits हमारे लिए ज़्यादा अहम है. All we want to do is we want to plot it, but this time we want to plot it in red. Whenever we miss it, so we want to see that in red, ठीक है. अच्छा जी. Okay, so this is basically simulating just one throw of a dart. ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं, this is for one throw of a dart. अब हम एक मरतबा नहीं करेंगे, हम तो ये प्रोसेस रिपीट करेंगे for 1000 times. So इसको हमने रिपीट करना है. कैसे रिपीट करेंगे? वो यूं करेंगे, for I is equal to 1 2 throws. So हमारे अगर 1000 थ्रोज हैं, so 1 से स्टार्ट लेंगे और 1000 तक जाएंगे, ठीक है, एंड देन एंड. अच्छा, तो अब ये पूरा जो थ्रोज हैं ये 1000 मरतबा रिपीट होंगे, ठीक है. अच्छा, 1000 मरतबा रिपीट होंगे और 1000 मरतबा हम ये स्कैटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये काम ना करें, फॉर एग्जाम्पल से f1 is equal to figure, let me create a figure, and then if you want to plot on the same figure more than once, you have to call the hold on function, ठीक है. So hold on function को let us call it in fact outside the loop. So I'm calling the hold on function, ठीक है. तो जब भी कोई नया स्कैटर प्लॉट हम करेंगे किसी पॉइंट को, तो इट विल नॉट इरेज द प्रीवियस वन. अगर हम नहीं करते तो प्रीवियस वन जो है वो इरेज हो जाएगा. और वंस वी आर आउट ऑफ द लूप, सो हम इसको होल्ड ऑफ कर देते हैं, ठीक है. ये हो गया. अच्छा, दूसरा, यानी आफ्टर ऑल द पर्पस ऑफ दिस कोड वाज दैट वी वांटेड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पाई. सो पाई की एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई से इनिशियली मैं उसको 0 डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज करता हूँ. एंड वंस वी आर थ्रू दिस लूप, सो हमारे पास देयर विल बी अ सर्टेन नंबर ऑफ हिट्स. हमारे पास हिट्स जो हैं वो, सॉरी, दिस शुड बी हिट्स. हमारे पास हिट्स हो चुके होंगे. नाउ द नंबर ऑफ हिट्स, द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ हिट्स, ठीक है ना, हिट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज, that will give us the estimate of the area of the sector. और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें with 4, ठीक है, तो हमें फिर पाई का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है. अच्छा, तो पाई की वैल्यू हमें किस तरह मिलेगी? तो हमारे पास ये जो हिट्स हैं, इनको अगर हम डिवाइड करें बाय द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज, सो दिस बेसिकली गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ डार्ट्स that landed inside the circular region, ठीक है. अच्छा, so this basically gives us an estimate of the area of the sector. ये जो सेक्टर है इसका एस्टिमेट हमें देते हैं. ये जो सेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये जो एक सेक्टर है. अब हमारे पास सर्कल में ऐसे 4 सेक्टर्स होते हैं, तो इसको हम 4 से ज़रब देंगे तो तब हमारे पास सर्कल का एरिया आएगा. और सर्कल का एरिया चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो वो पाई के बराबर होगा. तो हमारे पास फिर ये जो, यानी इस फिगर को अगर हम 4 से ज़रब दें, सो दिस विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है. अच्छा, सो पाई की वैल्यू हमने एस्टिमेट कर ली. अब इसको हम डिस्प्ले भी कर देते हैं, ठीक है. डिस्प्ले कि ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई है, और हम एरर भी डिस्प्ले कर देते हैं कि हमारा एरर क्या है. यानी एरर हम मैटलैब की जो पाई की वैल्यू है उसको हम सही मान लेते हैं कि वो करेक्ट वैल्यू है, तो हम एरर भी डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है. तो डिस्प्ले हम कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई माइनस हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई है, ठीक है. सो इनका डिफरेंस डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली लाइक जो बातें मैंने सारी आपको कहानी सुनाई, ये वो कोड है जो ये काम करेगी, ठीक है. एंड वी वेंट थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप. अब इस कोड को हम रन भी करेंगे. दिस टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज ये जो स्कैटर प्लॉट है
ये अपडेट होने में टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन आपको कमांड विंडो पे आखिर में पाई की एस्टिमेटेड वैल्यू, रियल वैल्यू दोनों का पता चल जाएगा, एंड होपफुली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे ये कोड काम करता है और सारा ये जो हम काम कर रहे हैं उसका बेसिक मकसद क्या था। सो एज आई मैंशन इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। अच्छा अच्छा, वी हैव सिंटेक्स एरर। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉल किया है तो उसको भी आर्गुमेंट्स को क्लोज करना है। और लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सो फिगर तो नज़र आ गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अपडेट होते हुए नज़र आएंगे। आई होप यू कैन सी दोज पॉइंट्स। ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये अपडेट हो रहे हैं जी। आई एम नॉट श्योर हाउ क्लियर द कलर्स आर, बट आई गेस ये जो रीजन है ये वो सेक्टर वाला रीजन है। दीज आर द हिट्स, ठीक है। जो डार्ट्स हम थ्रो कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे लैंड कर रहे हैं इनसाइड द सर्कुलर रीजन, दीज आर दोज डार्ट्स। और ये जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, तो दीज लैंड बेसिकली आउटसाइड द सर्कुलर रीजन, ठीक है। अच्छा, सो इट टेक्स टाइम। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो है, बट आई होप, आई गेस इट इज कंप्लीट। नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, अब कंप्लीट हो गया। सो पाई की एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास 3.12 आई है, विच इज क्लोज। हमारे पास जो एरर है दैट इज 0.021, और ये अगर आप देखें ना ये 100 डिजिट में है। अच्छा, ये एरर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो वो सादा और बड़ी आसान सी बात है। जब आप नंबर ऑफ डार्ट्स जो कि आप थ्रो कर रहे हैं वो अगर आप बढ़ा दें, और आपका रैंडम नंबर जनरेटर एक अच्छा रैंडम नंबर जनरेटर है, तो आपका ये जो सारा ये जो ब्लैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा एरिया बड़ा यूनिफॉर्मली भर जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो एरर का जो एस्टिमेट, ये जो एरर है बिटवीन योर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई एंड द रियल वैल्यू ऑफ पाई, सो ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दिस एरर विल रिड्यूस। किस तरह रिड्यूस होगा? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली द पोस्ट लैब टास्क। ये जो मैंने आपको पोस्ट लैब टास्क इस लैब में दिया हुआ है वो यही है कि आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आपने ये हमने किया फॉर 1000 थ्रोज, ठीक है। सो आप इसको रिपीट करें, यानी यहाँ पे एक और लूप लगाएं आउटसाइड, और आप पहले थ्रोज को 1000 रखें, फिर 2000, 3000, 4000, 5000 से आप प्रोग्रेसिवली उनको 100,000 तक लेके चले जाएं, एंड देन यू एस्टिमेट द एरर। आप देखें कि थ्रोज बढ़ाने से एरर पे क्या फर्क पड़ता है। सो यू हैव टू प्लॉट द एरर वर्सेस द नंबर ऑफ थ्रोज। नंबर ऑफ थ्रोज अगर 1000 हो तो एरर क्या है, नंबर ऑफ थ्रोज अगर 2000 हो तो एरर क्या है, 3000 हो तो एरर क्या है, 4000 हो तो एरर क्या है, 5000 हो तो एरर क्या है, ठीक है। अगर 1,00,000 हो तो एरर क्या है। देयर शुड बी अ डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। आपको इस किस्म का कुछ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट लैब टास्क है, ठीक है। पोस्ट लैब टास्क में आपने सिंपल यही जो कोड मैंने लिखा है इसको दोबारा से आप लिखेंगे ताकि आप ये काम जनरेट कर सकें। अच्छा, जब आप यानी और आपने क्या करना है, इसके एक्सटर्नल आपने एक और लूप लगानी है जिसमें ये जो नंबर ऑफ थ्रोज हैं ये वैरी करें, 1000 हों, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, 5000, ठीक है। तो वो आपने एक और लूप लगानी है ताकि ये काम हो। अच्छा, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि आप ये यानी जो पोस्ट लैब टास्क है उसमें आप ये स्कैटर प्लॉट ना जनरेट करें। स्कैटर प्लॉट अगर आप जनरेट करेंगे तो फिर आपका स्पीड बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो उसमें आप इस लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं। सो कमेंट आउट दीज 2 लाइन्स। आप कोई फिगर ना जनरेट करें, इनफैक्ट इसको भी कमेंट आउट कर दें। से इस लाइन को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें, सो अब इट विल टेक लेस टाइम, ठीक है। देखें अब ये जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये फिगर दोबारा से नहीं आनी चाहिए थी, पता नहीं ये क्यों आया। ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑफ की वजह से मे बी।
सो होल्ड ऑन होल्ड ऑफ को भी आप कमेंट आउट कर दें, तो फिर आपको रिजल्ट्स बड़ा तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें अभी आपको रिजल्ट तेज़ी से मिल रहे हैं। और ये एरर जो है वो इवन फॉर दीज 1000 थ्रोज ये वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? इसलिए वेरी करता है क्योंकि आप रैंडम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट कैन चेंज रैंडम नंबर्स, यानी एक मतलब एक सेट ऑफ रैंडम नंबर जनरेट, दूसरे मतलब दूसरे सेट ऑफ रैंडम नंबर जनरेट हुए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टास्क जो कि इस लैब में हम कर रहे हैं। इस लैब में बेसिकली हम स्कैटर प्लॉट को भी डेमोन्स्ट्रेट उसको भी देखना चाह रहे थे कि वो क्या चीज़ है, वो किस तरह के प्लॉट जनरेट करती है। एंड we also wanted to use random numbers to estimate to do something interesting. So this is an important and interesting technique, Monte Carlo techniques. आपको time मिले and when you move into other semesters, ठीक है, maybe आपको ये आपके काम आए. So you should have idea about this technique. ठीक है, so that's all for this lab. If you have any questions you can post comments, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।